we have like around 100 million plus people diabetic and 136 million people pre-diabetic. Diabetes is a serious disease that it is striking people in one country, and we are talking about India. Diabetes epidemic is growing. Here, over 50 million people live with diabetes. Why India is becoming more kind of a diabetic country? The past few generations, junk food has increased a lot. We've not realized that we've dropped our physical activity drastically. Recently, we had this case of a child who was 13 years old. The Acha. problem was that from 7 o'clock in the morning to 3 o'clock in the afternoon, he's sitting in school. 4:15 he comes back home. He eats normal. उसके बाद ट्यूशन रहते हैं 8-9 बजे तक. फिर मैं बोलती हूँ कि इसको थोड़ा खेलने भेजो. But the parents are like, time कहाँ है मैडम? And the symptoms are different. So I knew for sure कि his lifestyle is sedentary and that is why he is in the pre-diabetic category. What's the difference between type 1 and type 2 diabetes? Type 1 is majorly genetic. Type 2 diabetic, it is majorly lifestyle. तो जापानीज जो लोग होते हैं वो लोग बहुत स्किनी रहते हैं. One documentary that I saw, people who go on to living about 100 years. Okinawa. So वहाँ पे लोग अपना खुद का खाना उगाते हैं. They practice a lot of gratitude. They have a very strong sense of community. बहुत clean and pollution free environment में रहते हैं. तो 5-10 years तो वहाँ पे प्लस हो. रिसेंटली एक जिम में मैं किसी के साथ बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मैं बोला कि बहुत आपका मसल लॉस हो गया कि पहले थोड़े बल्की थे. तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत प्रोटीन लेता था इसीलिए मेरे को मसल लॉस भी बहुत हो गया. तो मैं बोला यार इतना सारा प्रोटीन भी फिर तो लाइफ टाइम के लिए बहुत खराब है ना. डाइजेस्ट तो नहीं होता होगा ना इतना सारा प्रोटीन भी. Protein digestion and absorption is also a thing. मतलब if your gut health is healthy, then you will be able to absorb those kind of proteins. Otherwise, you will not be able to. तो व्हाट डू यू से कि हमको दही या वो सारी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए? तो Kimchi, pickled vegetables, these are sources of your prebiotics. Probiotics में दही, whole grains, fruits, vegetable, दाल्स, ये सारा probiotics का sources हो गया. ये बैक एक्ने और बहुत सारी ऐसे भी साइड इफेक्ट्स कभी अभी हम देखते हैं किसी में आ जाती है. तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? Whey is a Shweta, tell me something about yourself. First of all, let me welcome you first. Thank you for doing this. You know, it really means a lot to me. And tell me, how was your journey? Flights and everything, all right? all right, all good. We came by car. Okay. Yeah. So, are you here for some visit or what kind of things? Because you don't come to Ahmedabad a lot, right? I don't come to Ahmedabad a lot. Okay. I mean, I do go to my native place, but I don't stay back here. But this time we came specifically, one of the reasons was this podcast, and one of the reasons was I wanted to visit my Nana Nani. Okay. Yeah. So they are all from. They are basically from, Ahmedabad. yeah, Okay. they are from Gujarat. Got it. Makes sense. Yes. So tell me something about yourself. What did you study and? So I have done my master's in clinical nutrition and dietetics. I did my post graduation in like 2017 is when I did that, and since then I have been practicing. And we mainly deal with people who have inflammation, people who obesity or diabetes. Diabetes, I think in the recent times I've seen a lot of increase in trend of diabetes and even pre-diabetes. So that's pretty much what we do. So mostly you started this like from 2015? I've started this from 2017 itself. 17, Yeah, October okay. 2017 is when we exactly started with the clinic, and we went on to incorporating it in the year of 2021. 2021 in Yeah. Mumbai, right? In Mumbai, that's correct. What's the name of the clinic? The diet therapy. The diet therapy. Yeah. Okay. What kind of clients you have usually? Is it like the weight loss or? We actually have an entire we have right from kids to up to geriatric patients in the age group of 75, 80. That is also the age group that we deal with, probably with other lifestyle conditions or pediatric nutrition. We deal with people who are in corporates, battling a lot of stress, battling something like diabetes, pre-diabetes, hypothyroidism, higher blood pressure, higher levels of cholesterol, fatty liver, and just not good. They haven't developed a good relationship with food in itself.
lot of cravings, lot of relying on junk food, lower energy levels, lower levels of hemoglobin, anemia. So a lot of things that we deal with. Inflammation also. Inflammation, by large, I see a lot of people with inflammation these days. People with gut health related issues, acidity, bloating, constipation. So yeah, that's majorly about what we deal with. Okay. Yeah. Wide range of things you deal with. Yeah. I got scared for a moment. I was like, man, this problem. It's a wide range, but this Okay. also comes as a package in a lot of people. Like, for example, there is constipation, there is pre-diabetes, but then there's also anemia. Anemia, constipation together, a deadly combination. Very difficult to help a client like this. Okay. Yeah, So you mentioned something about diabetes, right? correct. We have like around 100 million plus people diabetic, and like how much? 136 people, 36 million people pre-diabetic. Correct. So what's the problem with that? Why India is becoming more kind of a diabetic country? We are relying a lot on ultra processed food. Yeah, we haven't realized, but I think in the past few generations, our inclination in general towards junk food has increased a lot. We've not realized that we've dropped our physical activity drastically. I mean, I don't see anyone who's active. Even in Mumbai, when I talk about Mumbai as a city in itself, people are either, there is auto rickshaws, there is Activa, there is car as soon as you step down from your building. Got So it. I don't see anybody who's moving around enough. This, along with a lot of stress, stress related to different things in life. For example, if someone's got married recently, so everything, so the stress related to probably a change in their life. Someone's got into that corporate culture, so climbing up that ladder and the stress that it brings along with it. Or someone is just dealing with daily issues, that kind of stress. So everything, when you bring that together with your sedentary lifestyle, the eating habits, that is one of the major reasons that why we are the diabetes capital in the world. Okay. Yes. So what's the difference between type 1 and type 2 diabetes? Type 1 is majorly genetic. It Okay. develops during the younger years, like someone in the age group. It can be a newborn baby, a few months, probably a month old, to up until 14, 15, 16 years. We've seen it up until 18 years also. And so there an individual has to majorly rely on external insulin. Okay, that's type 1. Now that's the only way to be able to manage it. You have to, along with taking insulin, you have to manage it using your diet and lifestyle. If you're doing your carb count well, if you're managing with your diet, it works wonderfully. Okay. For someone who is a type 2 diabetic, it is majorly lifestyle. I will say there are people who might not even need medications if they go on to correcting their lifestyle and eating habits. Got it. Yes. So mostly अभी है ना, सारे घर में आप अपने जब देखते हैं ना, तो मेरे को 3 डिसीज है ना, वो ज्यादातर दिखती है. Correct. एक है हार्ट रिलेटेड इश्यूज, हाँ. सेकंड डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर. ये तीनों चीज मेरी फैमिली में है. मतलब और मेरे को बाहर भी जाता हूँ, मेरे को दिख जाता है. किसी को बीपी है, किसी को एक बार हार्ट अटैक आ चुका है, स्टेंट लगा हुआ है. कुछ मोस्टली 30s 40s की बात कर रहा हूँ. अभी तो यंगर्स में भी होने लगा है. Correct. बट स्टिल अभी अपने बात करते हैं सपोज डायबिटीज की, तो मतलब ये सिर्फ शुगर का इश्यू होता है या कार्ब्स का इश्यू होता है या फिर क्या होता है उसके अंदर? क्यों मतलब डायबिटीज इतनी बढ़ रही है? डायबिटीज इतना बढ़ रहा है, दैट्स व्हाट सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. Okay. लोग, पीपल आर नॉट मूविंग. मतलब लोग एक जगह से पूरे दिन अगर लैपटॉप पे बैठे हैं तो 10-12 घंटे लैपटॉप पे बैठे हैं. ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में बैठे हुए हैं. तो इनफ मूवमेंट नहीं है. सो इट्स अ लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज इज व्हाट आई वुड से. कार्ब्स प्लेज अ हेवी रोल हियर बिकॉज हमारा एज अ कंट्री, इफ यू सी, हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर. एंड हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वी डोंट पेयर इट वेल विथ इनफ प्रोटीन्स एंड फाइबर. कार्ब इज नॉट
the only enemy. The enemy here is also कि आप इसको combine नहीं कर रहे हो fiber and proteins के साथ. तो सिर्फ carbs को blame करेंगे, that's not the right thing to be doing, because we have some amazing complex carbohydrates also that traditionally our previous generations have been eating, and they have been fine because वो इतना physical activity करते थे, इतना stress नहीं था, the environment was much more cleaner back then. But now that we've shifted to modernization, modern lifestyle, जब हम इतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जब हम इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जब हमारे टाइमिंग्स करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू फूड, लेट नाइट बहुत ज़्यादा डिनर्स होते हैं, 9 बजे 10 बजे कॉर्पोरेट से वापस आए फिर खाना खाते हैं, एंड फिर अगर 10 बजे इफ़ यू ईट अ कार्ब हैवी मील, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है. प्रॉबेबली इनिशियली इमीडिएटली नहीं दिखता, बट धीरे धीरे वो पॉट बेली ऐसा डेवलप होता है. स्टार्टिंग में वो दिखता है सबसे पहले. फिर देन व्हेन यू इग्नोर इट एंड यू गो ऑन टू कंटिन्यूइंग विद द सेम लाइफस्टाइल, फिर देन प्री डायबिटीज आता है थोड़े सालों बाद. फिर देन वो प्री डायबिटीज नहीं, मेरा प्री डायबिटीज में ही रहता है, मेरा कभी डायबिटीज जाता नहीं है. आई एम कंफर्टेबल विथ रेंज, एंड वी हैव पीपल हु कम टू अस एंड टेल अस नहीं मेरा इतना ही रहा है, आई एम कंफर्टेबल विद दिस. फिर वो जब अटेंशन नहीं देते, दैट्स व्हेन वो फुल ब्लोन डायबिटीज में डेवलप होता है. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर बॉडी ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ सिग्नल्स, बट आप सिर्फ उसको इग्नोर करते जाते हो. तो प्री डायबिटिक अराउंड कितना होना चाहिए? मतलब लोग टेस्ट भी नहीं कराते. हाँ, टेस्ट भी नहीं करवाते हैं. Anybody who is above the age group of 25 years. 25. You have to test yourself year on year. आपका एक फाइल कैसा, हर एक चीज़ का एक स्कूल का पूरा फाइल होता है, रिजल्ट्स का फाइल होता है, आपका मेडिकल रिजल्ट्स का भी एक पूरा फाइल होना चाहिए राइट फ्रॉम व्हेन यू आर 25 years of age, एंड ये होना ही चाहिए. नाउ आई विल से दैट इवन इन द यंगर, अगर 18 के ऊपर हो, D3, B12 एंड आयरन लेवल्स कराओ. Very much necessary. It will help you decide your focus. It will also help you decide कि आप अगर पढ़ाई पे concentrate नहीं कर पा रहे हो तो शायद B12 कम हो सकता है, शायद D3 कम हो सकता है. Yes. उससे फोकस पे इतना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. नॉर्मल रेंज में भी अगर B12 होता है, नॉर्मल रेंज इज कंसिडर्ड एनीवेयर अराउंड 240 से above, and anywhere closer to say 800, 900. This is an entire range depending on the lab that you're getting tested from. Understood. But मतलब अगर 300 भी है तो people are happy, चलो मेरा normal range में है. But when you need optimal functioning of B12, it has to be above 500 because it's a water soluble vitamin. जितनी बार you're going to the washroom, उतनी बार you're losing vitamin B12. Okay. Yeah. तो उससे फोकस पे इम्पैक्ट पड़ता है डायरेक्ट? बहुत ज़्यादा फोकस पे इम्पैक्ट पड़ता है. आई मीन जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहती है, यू नो, लाइक यू कैन डिसाइड कि नहीं मेरा ये फ्लो ऑफ थॉट्स रहना चाहिए, मुझे ये करना है. जो यू आर एबल टू कंपार्टमेंटलाइज योर थॉट्स इज व्हाट आई वुड से. वो नहीं हो पाता. एवरीथिंग इज जम्बल्ड इन बिटवीन. शायद से मेरे को होगी डेफिनेटली, इसीलिए मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे. अब पता चला फोकस ही नहीं था. बट मोस्टली अभी है ना, लोग क्रिएटिन भी यूज करते हैं, आपको पता हो तो. फोकस के लिए वो सारी चीजें 3 ग्राम डेली लेते हैं, उससे उनको ब्रेन शार्प रहता है, वो सारी चीज. हाउ ट्रू इज इट? So, see, supplementation, use supplementation, but then use it smartly. Okay. Yeah. Don't just rely on supplementation day on day basis पे. You're using it well and good, effective भी होता है, right? But then one day all of a sudden you decide नहीं मैं बहुत ज़्यादा supplement consume कर रहा हूँ या कर रही हूँ, and then you go on to stopping it. But आपने वो तो अपने normal खाने से तो replace किया ही नहीं. What about that time? वो भी है. बट आपको लगता है कि सारी चीज़ें अपने को डाइट से मिल सकती है? क्योंकि अभी का न्यूट्रिशन अब मेरे को नहीं लगता, क्योंकि डिप्लीट होता जा रहा है. जो पहले ब्रोकली में जितना न्यूट्रिशन था अभी उतना नहीं होगा. नहीं होता है. दैट इज वाई वी रिलाई ऑन सप्लीमेंटेशन ऑल्सो. I would not advise to heavily rely on it. But first test कराओ, उसके बाद आपको लगेगा test कराओ. Yes, test कराओ. You correct your nutrition and use supplementation as supplementation. वो कभी normal खाने को replace नहीं कर पाएगा. Last में आना चाहिए. Yes, वो last में भी नहीं, but वो second रख सकते हैं ऐसा. First should be always your nutrition, your lifestyle. Second, use supplement as a supplement. मतलब वो एक additional चीज है which you can use to improve your performance overall. Got it. Improve your overall health, but it can never replace your normal lifestyle and normal eating habits.
यहाँ पे ना वो शॉर्टकट की तरह बिकता है कि यार वे प्रोटीन ले लो, ये ले लो, बॉडी बन जाएगी। बट यार हाँ। पहले आप कंप्लीटली 80-90 ग्राम्स आपको चाहिए, देखो 50-60 डाइट से मिल रहा है, फिर एक स्कूप ऐड करो। Yeah, अभी यहाँ that's पे सब fair. 2 स्कूप में सुबह शाम के मेरी बॉडी बन जाएगी, बट ऐसा नहीं होता ना ओवरऑल यार। नहीं, I would not advise relying. See, if you're able to meet it up via natural sources, via नॉर्मल खाने से अगर मीटअप कर पा रहे हो, देर आर अ लॉट ऑफ फूड सोर्सेज विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटीन्स। अगर मैं देखूँ तो अगर इससे मीटअप कर पा रहे हो, देन सप्लीमेंट इट, बट देन 1 स्कूप 1.5 स्कूप, एंड सामने उतना फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करो, बिकॉज अल्टीमेटली प्रोटीन्स 1 मतलब ग्राम ऑफ प्रोटीन्स 4 कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 4 कैलोरीज अगेन। सो अगर आप इसको एक्टिविटी के साथ अगर प्रोटीन इंटेक नहीं बढ़ा, मतलब इफ यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर एक्टिविटी बट यू जस्ट गो ऑन टू इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इंटेक, तो अल्टीमेटली लॉन्गर रन में इट डजेंट हेल्प। अगेन यू विल बी अ विक्टिम ऑफ पॉट बेली, वो एडिशनल एडअप होता है। एंड अगर एक्टिविटी नहीं भी करते हो, सही प्रोटीन मेटाबॉलिज्म नहीं है बॉडी में, सो दैट्स व्हेन ऑल्सो अगेन इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो फिर हायर लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड, बट देन हमारा ब्लेम डायरेक्टली जाता है प्रोटीन लिया, इसके लिए मुझे ये यूरिक एसिड हो गया। दैट्स नॉट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हायर लेवल्स ऑफ यूरिक एसिड। गॉट इट। मोस्टली मेरे रिसेंटली एक जिम में मैं किसी के साथ बात कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि मैं बोला कि बहुत आपका मसल लॉस हो गया, क्योंकि पहले थोड़े बल्की थे। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत प्रोटीन लेता था, इसीलिए मेरे को थोड़ा कॉन्स्टिपेशन टाइप ऐसा कुछ हो गया, रीजन बिंग इससे मेरे को बहुत दिक्कत भी आई और मेरा मसल लॉस भी बहुत हो गया। बोले मैं सारी मील में कांस्टेंट मील मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन ले रहा था, सारी चीजें। मैं बोला यार इतना सारा प्रोटीन भी फिर तो लाइफ स्टाइल के लिए बहुत खराब है ना, बिकॉज डाइजेस्ट तो नहीं होता होगा ना इतना सारा प्रोटीन भी। Protein digestion is, again, like I said earlier, कि protein digestion is also a thing and protein absorption is a thing. अच्छा, वो 2 सेपरेट। हाँ, protein absorption is a thing कि मतलब आप इतना अगर मैं एग का स्कोर देखूँ, पीडी का स्कोर देखूँ, तो इट इज 1। मतलब अगर आपको 6-7 grams ऑफ प्रोटीन्स मिल रहा है फ्रॉम वन नॉर्मल एग, 1 बॉइल्ड एग, तो वो पूरा अब्जॉर्ब हो रहा है आपके बॉडी में। अच्छा, हाँ। वेयर एज विथ रिस्पेक्ट टू अपने दाल्स है या फिर विथ रिस्पेक्ट टू, हाँ करेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू अपने नट्स है, इसका पीडी का स्कोर इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू इफ यू आर कंपेयरिंग इट विथ एग्स। तो प्रोटीन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो अ थिंग। आपके स्टमक में देर आर एंजाइम्स विच विल ब्रेक डाउन दीज प्रोटीन्स, फिर अब्जॉर्प्शन होता है। तो बॉडी को मतलब इफ योर गट हेल्थ इज हेल्दी देन यू विल बी एबल टू अब्जॉर्ब दोज काइंड ऑफ प्रोटीन्स, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू। Second pointer that you mentioned about constipation, if you're not having enough water and fiber, सिर्फ प्रोटीन इंटेक पे फोकस कर रहे हो, this is a side effect which happens. हाँ, we've seen that very common if your gut health is not right. This is very common side effect that I have seen with protein supplementation also, especially जिनका gut usually weak रहता है, उनके लिए ये applicable है। तो व्हाट डू यू से कि हमको दही या वो सारी चीज ज्यादा खानी चाहिए? तो थोड़ा प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, यस। प्रीबायोटिक्स इफ आई हैव टू गिव यू एग्जांपल्स, सो किमची हो गया, या फिर यू कैन हैव सम वेजिटेबल्स, पिकल्ड वेजिटेबल्स है। प्रोबायोटिक्स मतलब लाइफ जो अपना कल्चर है, लाइक दही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, दाल्स, ये सारा प्रोबायोटिक्स का सोर्सेज हो गया। ऑलराइट, ओके, मेक सेंस। एंड अगर कोई एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, जैसे 3-4 times a day, 3-4 times a week they are working out and stuff, so how many protein do they need? 0.8 से हिसाब से या फिर they might go higher? So ICMR has revised their protein guidelines. जो 0.8 से हुआ करता था पहले, now it is 0.6 से बिग, हाँ 0.6 कर दिया, 0.6 कर दिया, okay, because I would say कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लोग बहुत ज्यादा अब्यूज कर रहे थे कि बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ रहा था। देयर वर अ लॉट ऑफ अननेसेसरी सप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटीन, जबकि बेस लेवल पे डाइट से तो मिला ही नहीं है, तो वहाँ पे भी प्रोटीन इंटेक बढ़ रहा था। सो दैट इज वाई आई थिंक ICMR वेंट ऑन टू चेंजिंग दोज गाइडलाइंस। उन्होंने 0.6 से स्टार्टिंग रेंज। सो इफ यू आर समवन हु इज मेंटेनिंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, इतना कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, 0.6 ग्राम पर kg ऑफ योर बॉडी वेट इज ऑल्सो ओके। Okay. Yeah, that's also fine.
if you're someone who's doing like heavy physical activity, मतलब आपका ज़्यादा weight training, muscle training, if you're doing like gym हर रोज कर रहे हो, 6 दिन कर रहे हो हफ्ते में, then you go on to increasing 1.2 grams, फिर gradually you go on to increasing, you think you need more for recovery, फिर आप कर रहे हो 1.5 grams, absolutely fine, go on to doing it because आपका उतना सामने wear and like repair हो रहा है body में, wear and tear है उतना आपके muscles में, तो आपके muscles को वो लगने वाला है. ओके तो ये सारे जो सप्लीमेंट्स है जैसे प्रोटीन के और वो सारे जो जिम में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे भी डिटॉक्स होना ज़रूरी है क्या? बीच में शायद से क्रिएटिन छोड़ दिया 1 आध महीने के लिए, वे प्रोटीन छोड़ दिया, बैक टू होल फूड्स चले गए, यू रेकमेंड दैट काइंड ऑफ थिंग? होल फूड्स तो कभी बैक सीट लेता ही नहीं है ना यहाँ पे. हाँ गाड़ी चला रहा है, होल फूड्स गाड़ी चला रहा है, हाँ. बैक सीट पे प्रोटीन सप्लीमेंट है. पर अपने यहाँ पे तो मोस्टली मैंने जितना देखा है उल्टा ही होता है क्योंकि मोस्टली सब सप्लीमेंट्स पे ज्यादा देते रादर देन नहीं, वो आपका फ्रंट सीट ड्राइविंग तो होल फूड्स ही करने वाला है अलोंग विद नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. बैक सीट पे फिर अपना प्रोटीन इनटेक है, क्रिएटिनिन है, तो वो उससे क्रिएटिन वगैरह से ब्रेक लो, फाइन. प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से इंडिकेशंस है कि अगर अब भी लेना चाहिए ब्रेक कि ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या फिर ज़्यादा प्रोटीन इंटेक, तो आई वुड रेकमेंड कि ग्रेजुअली उसको कट डाउन करो एंड बॉडी को उससे भी यूज टू होने दो. यू आर टेकिंग 1.5 स्कूप फॉर द लास्ट 6 months और 1 year और years से आप ले रहे हो. ऑल ऑफ अ सडन कल उठ के डिसाइड किया अब मैं कल से नहीं लेने वाला हूँ. हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर बॉडी टू रिस्पॉन्ड? वो रिप्लेस होना चाहिए. There has to be a systematic way of replacing that protein also. Sense. So on an average अपने वेजिटेरियन जितने डाइट आपने बोला कि ऑब्जॉर्ब नहीं होता इतना, जैसे कि किडनी बीन्स हो गया कुछ भी अपने खाते हैं, so 50% 60% यूज होता मतलब 60%, कुछ दाल्स का अप्रोक्सीमेटली 70% तक भी जाता है. Yes, कुछ बट मेजरली इट इज एनीवेयर बिटवीन 50 to 60%. दैट इज विद अ गुड गट हेल्थ, जो देखा है कि इतना आपके बॉडी में अब्जॉर्ब होने वाला है, उसका इतना ही मतलब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी वो दाल से इतना ही है. सो मोस्टली अगर मैं 100 ग्राम प्रोटीन ले रहा हूँ दाल से और वो सारी चीजों से, तो मेरा सिर्फ 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ही कहने का मतलब तो बॉडी ले पा रहा है, ऐसा हुआ ना? तो हाँ, अब्जॉर्प्शन आपके मतलब अब्जॉर्प्शन एज इनके आपकी बॉडी को जो हम बोलते हैं कि लग के आ रहा है, एक्चुअली मसल में यूज हो रहा है, मसल बिल्डिंग में यूज हो रहा है, वो आपका 60% 70% तक होगा. नाउ दिस इज जस्ट बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट दाल्स एंड हम वही बात कर रहे हैं. इफ यू गो ऑन टू पनीर, हाँ, तो वो उसका अगेन पीडी का स्कोर बढ़ गया, उसका इज बिटवीन 70 to 80%. ओके. हाँ, 90s में कोई है? 90s में वेजिटेरियन में आई थिंक नाउ देयर आर ब्रांड्स जो हाई प्रोटीन्स मतलब आई मीन हाई प्रोटीन पनीर भी करते हैं. मैं मिल्की मिस्ट का खाता हूँ, उसका 50 ग्राम समथिंग आता है. हाँ, तो दैट्स अ गुड. I would not want to do brand recommendation. Just normal बात है, हाँ, वो तो ऐसा कुछ नहीं. So there are brands available जो करते हैं. They have good amounts of proteins, 45-50 grams है. तो मतलब प्रोटीन with respect to milk and milk products, I would say anywhere between 70 to 80% जाता है. Yes. 85% at most. But nothing as good as I would eggs या non-vegetarian sources of it. पर नॉन वेज में जितना होता है अपने यहाँ पे तो मोस्टली लोग खाते ही बहुत कम है, और स्पेशली इन गुजरात में तो कल्चर भी बहुत कम है. मुंबई में आप सब देखोगे इट्स नॉर्मल के भाई चिकन वो सारी चीज. करेक्ट. यहाँ पे तो बहुत हार्ड है, और मोस्टली घर वाले भी फिर लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई कितना प्रोटीन खाएगा, प्रोटीन की क्या जरूरत है इतनी. Because people are not educated. Very true. Yeah, people are focused on results. Ultimate result क्या मिलेगा ये करके, आप वो बता दो. Nobody is focused on the journey कि ये क्यों होता है, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है. Nobody is asking those kind of questions. So if people focus more on awareness, people focus more on educating themselves with basic food groups, with basic food categories, I think that will take them a long way. वेरी ट्रू. और मोस्टली मैंने ये चीज़ देखी कि जेन जी है कि जैसे 20s में कुछ लोग है, यूट्यूब उनके लिए बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड करने का मतलब सारी चीज़ें वहाँ से मिल रही. बट जो दिक्कत आती है 40s और 50s में, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है या पापा मम्मी हो गए वो सारे, तो उनको जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली जो चीज़ है ना वो बहुत दिक्कत करती है. किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं प्रोटीन से, ये होता है, और सारी चीज़ मीठी है ना कहने का मतलब. Kidney problems as in your entire purification process of proteins है वो किडनी के थ्रू पास होता है. तो अगर आप
प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हो, बट इफ यू आर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, तो योर किडनीज आर गोइंग टू बी ओवरलोडेड अगेन. एंड प्रोटीन इंटेक ले रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट डूइंग योर वर्कआउट, सिंपली टेकिंग प्रोटीन इंटेक, एंड आपका बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, देन आपके किडनी के ऊपर इम्पैक्ट आता है. बट इफ यू आर डूइंग योर वर्कआउट्स, इफ यू आर हैविंग इनफ वाटर, यू आर मेंटेनिंग गुड हाइड्रेशन, 2.5 3 लीटर्स 3.5 लीटर्स तक आप मेंटेन कर रहे हो हाइड्रेशन, एंड अपना नॉर्मल लाइक योर बेसिकली योर एंटायर रूटीन इज वेरी एक्टिव, तो फिर देन इट डजंट गो ऑन टू हार्मिंग योर किडनीज. ओके. ये बैक एक्ने और बहुत सारी ऐसे भी साइड इफेक्ट्स कभी अभी हम देखते हैं किसी में आ जाती है. सो व्हाई इज दैट रीजन? मतलब लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं मतलब प्रोटीन लेके, या फिर नहीं, इट ट्रिगर्स सर्टेन एंजाइम्स इन योर सेबेशियस ग्लैंड प्रोटीन या वे प्रोटीन स्पेसिफिकली. दिस डजंट हैपन विद प्लांट प्रोटीन. अच्छा, पी प्रोटीन कैसा? पी प्रोटीन से नहीं होता है, नहीं. या दिस डजंट हैपन विद पी प्रोटीन. इट स्पेसिफिकली हैपेंस ओनली विद प्लांट प्रोटीन, अरे ओनली विद वे प्रोटीन. या ओनली विद वे प्रोटीन दिस हैपेंस कि सर्टेन एंजाइम्स आपके इसमें सेबेशियस ग्लैंड में वो ट्रिगर करता है, जिसके वजह से सर्टेन हार्मोन्स इट ट्रिगर्स, जिसके वजह से देन यू गो ऑन टू डेवलपिंग फेशियल एक्ने भी होता है, बैक पे एक्ने भी होता है, मतलब या वो उसके वजह से होता है. बट देन अगर किसी को ऐसे है, आई वुड रेकमेंड यूज plant based protein. We have a lot of good brands these days. Got it. Yes, go on to replacing it, because iske then you don't have any other option other than doing this. If you are doing your workouts, normal खाने से meet up नहीं कर पाते हो, replace it with a pea protein or a plant protein. Makes sense. तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? वे से ही कहने का मतलब कि ये बैक एक्ने या फिर कुछ ना एक्नेस नॉर्मली और वो सारी चीज. Like I said कि वे that compound in itself, वे प्रोटीन जो है that triggers a certain hormones in your sebaceous gland. तो मतलब दूध पी रहे, वो पी रहे, तो उसमें क्यों नहीं हो रहा? उनको उससे भी शायद से होता होगा. अच्छा. हाँ, वो उन्होंने इतने इम्पैक्ट पे नहीं होता है, मतलब इतने, क्योंकि वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड भी नहीं होता है इफ यू से इन मिल्क, तो उसकी वजह से इतने इम्पैक्ट में नहीं होता. बट वे इज अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म दैट यू आर कंज्यूमिंग, जिसके वजह से, हाँ, जिसके वजह से वो होता है. सो बेसिकली प्रोटीन में आप अगर बोलो कि 100 grams ऑफ प्रोटीन मेरे को रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वर्किंग आउट लाइक 4-5 times a day with only vegetarian options. 4-5 times a week, you mean? Sorry, 4-5 times a week. I don't know 4-5 times a day who does it, but 4-5 times a week. So 100 grams of protein की requirement है. Correct. तो आप कैसे पूरी करोगे? मतलब एक डाइट आप बोलो. If I have to include मतलब if I have to make a diet plan with someone who has 100 grams of proteins, so depending, you want me to just make a plan wherein I'm including options कौन से ले सकते हो, carbs किसके साथ मैच कर सकते हो. So in this case you want me to be doing like adding up a whey protein here, or you do without a whey supplement? Let's do it without the whey protein, and after Achha. whey protein will be much easier. ठीक है, चलेगा. So if I have to add up a if I have to do it without a whey protein, then I will start with like something like a yogurt bowl first thing in the morning. Okay. That is one option. या फिर I will ask someone to have poha along with a cider of someone who's a non-vegetarian, along with a cider of say 3 to 4 egg whites. I will ask someone to add some chole, sprouted chole, 100 grams of sprouted chole add कर दो normal poha में, 100 grams of sprouted मूंग ऐड कर दो. या फिर यू कैन ऑल्सो गो ऑन टू डूइंग लाइक अ मिक्स स्प्राउट्स बोल फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. 150 grams ऑफ करीबन उतना मिक्स स्प्राउट्स अगर ले रहे हो आप, यू विल मीट अप एनीवेयर अराउंड 12 to 15 grams ऑफ प्रोटीन विद दिस. ठीक है, दैट इज, हाँ, ब्रेकफास्ट में. या बट समवन हुज डूइंग एग वाइट्स, वो थोड़ा ज्यादा इससे मीटअप करेगा. फॉर समवन हुज डूइंग अ योगर्ट बोल ऑल्सो, वो इससे ज्यादा मीटअप करेगा विद 200 to 20 grams ऑफ योगर्ट. वो ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल ग्रीक योगर्ट वो मीटअप करेगा एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 grams ऑफ प्रोटीन्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. यस. So I would, that is why I also go on to कि अगर हम पराठा कर रहे हैं, I go on to adding like 200 grams of Greek yogurt with it. So good combination. Makes sense. पनीर पराठा कर रहे हो, go on to adding low fat high protein. अगर आप 100 grams of भी वो पनीर यूज कर रहे हो, 25 grams of protein. उसके साथ 100 grams भी मैं Greek yogurt add कर दूँ, that makes my good anywhere around 10-12 grams of proteins.
सो अगेन मेरा अगर ये सारे कॉम्बिनेशंस करो तो कुछ कॉम्बिनेशंस में इट विल बी 15-20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, कुछ कॉम्बिनेशंस में देयर विल बी 25 से 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स मीटअप होगा. सो ये मैं डिवाइड करूंगी डिपेंडिंग वेदर द इंडिविजुअल इज अ मेल और अ फीमेल. ओके. या सेकेंड थिंग देन इफ आई हैव टू गो टू लंच ऑप्शंस, अगर मैंने सुबह स्प्राउट्स इंक्लूड नहीं किए हैं, आफ्टरनून में वी कैन डू समथिंग लाइक अ स्प्राउट सैलेड. उसके साथ में आई विल एड अप सत्तू बेस्ड या फिर बेसन का रोटी आई विल एड अप अलॉन्ग विथ अपना जो नॉर्मल सब्जी होता है, सब्जी एंड नॉर्मल दाल या दही जो भी जिनको कंज्यूम करना है. दाल या दही नहीं कंज्यूम कर रहा है, समवन इज अ नॉन वेजिटेरियन, दे कैन एड अप अ सोर्स ऑफ चिकन है, पनीर है, या फिर यू कैन ऑल्सो डू फिश, whatever that is available. Yeah, so this also again makes up for good 20-25 grams of proteins for your lunch part of things. Okay, sprouts and paneer for vegetarian. हाँ, sprouts है, पनीर है for vegetarian, दाल है, दही है, नॉर्मल घर का दही ले लो फिर. दाल में तो 6-7 grams आता है. 6-7, हाँ, that is why we have added a source of besan roti, no? हाँ, अगर आप बेसन रोटी कर रहे हो तो 1 बेसन रोटी में ऑल्सो इफ आई गो, मतलब एटलीस्ट अगर मेरा डो साइज यूज हो रहा है क्लोज टू 30 ग्राम्स और वैसा कोई अगर 2 रोटीज खा रहे हैं तो दे मेक अप गुड 14 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. 14, हाँ. फिर मैं यहाँ पे कंबाइन कर रही हूँ अगर स्प्राउट्स भी, तो दैट इज 8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स अगेन. प्लस बटर मिल्क समथिंग 1-2 ग्राम्स, उसमें भी छोटा मोटा आ जाता है. इजी. हाँ, 18-20 योर टॉपिक. इजी. 18-20 इज वेरी इजी. ओके. हाँ, अगर इसमें मैं पनीर ऐड कर दूं और अगर नॉन वेजिटेरियन ऐड कर दूं तो देन इट्स अनदर. या दैट इज अगेन वेरी गुड प्रोटीन्स फॉर समवन. अगर मेरा ये डिविजन है विथ रिस्पेक्ट टू माई लंच एंड माई ब्रेकफास्ट, मेरा 50-60 ग्राम्स यहाँ तक ही मीटअप हो रहा है. आई विल, एंड अगर इफ यू आस्क मी कि शाम के टाइम पे इफ आई हैव टू इंक्लूड लाइक 40 ग्राम्स, आई वुड रादर कट इट डाउन टू से 20-25 ग्राम्स ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स फॉर डिनर्स. एंड मैं वो जो 10 ग्राम्स का गैप है आई विल मीट इट अप इन देयर स्नैक टाइमिंग. ओके. 4-5. हाँ, स्नैक टाइमिंग पे प्रॉब्ली आई माइट ऐड इन अ फ्यू नट्स है, सीड्स है, या फिर लाइक अ प्रोटीन बार और समथिंग लाइक दैट है, या फिर आई अगेन एड अप लाइक अगर कहीं पर भी योगर्ट यूज नहीं हुआ दिन भर में तो आई एड अप अ योगर्ट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम. या फिर अगर सत्तू वाला छाछ कर सकते हैं. हाँ, दैट्स अ रियली गुड ऑप्शन फॉर दैट टाइम. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई आस्क पीपल टू मेक छाछ यूजिंग देयर नॉर्मल मतलब ग्रीक योगर्ट ऑल्सो. तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ गुड सोर्स. 4-5 पीसेज ऑफ पनीर नहीं लिया कभी दिन में तो ये टाइम पे ले सकते हो. बॉइल्ड येलो मूंग दाल जो अपना होता है उसको चाट फॉर्म में ले सकते हो, चना चाट ले सकते हो. यस, डिनर के टाइम पे यू कैन डू नॉर्मल सौते वेजिटेबल्स है, उसके साथ चीला कर सकते हो. 2-3 cheelas if you're aiming for 100 grams of proteins, which means you will be an individual who will be doing your workouts really well. वहाँ पे अगर आप 3 चीला ले रहे हो इतने साइज का, palm sized का, no problem with that. Go on to taking it, but add up your fiber there. Okay. Yes. मोस्टली आप रेकमेंड करते हो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन जो आते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि वो लोग ज्यादा ऐसा करते हैं कि धीरे-धीरे रिलीज करते हैं तो वो टाइम मसल रिकवरी. बट अगेन अगर आप दैट इज एक वर्कआउट आप कौन से टाइम पे कर रहे हो दिन के, उसके हिसाब से हम वी गो ऑन टू डिवाइडिंग लाइक जो प्रोटीन्स कहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन मतलब एकदम फटाक से आपका अब्जॉर्प्शन होना चाहिए. सो वी गो ऑन टू डिवाइडिंग इट दैट वे. केजीन बेस्ड यूजुअली जो प्रोटीन्स है तो दोज आर स्लो मतलब अब्जॉर्बिंग प्रोटीन, मतलब दे आर रिलीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो तभी रिलीज होते हैं, तो देन वो हिसाब से वी एड ऑन टू इट. ओके, मेक सेंस. 100 ग्राम्स आराम से कवर हो सकता है. आराम से कवर हो सकते हैं विद स्पेशली विद द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव राइट नाउ. लो फैट हाई प्रोटीन जो पनीर है, ग्रीक योगर्ट्स, अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर डूइंग अ रियली गुड जॉब विद ग्रीक योगर्ट्स. एंड इसके साथ अगर आप स्प्राउट्स वगैरह मिक्स अप कर देते हो तो इट ईजिली मेक्स अप फॉर 100 ग्राम्स थ्रू आउट द डे. बट अगर आप 100 ग्राम्स कंज्यूम कर रहे हो, यू बेटर बी एन एक्टिव इंडिविजुअल. हाँ, वरना तो 0.6 के हिसाब से आप तो ज़्यादा अच्छा है. यस. और मोस्टली अभी आपने जो मतलब बोला कि जैसे ब्रांड्स अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, और अभी तो शुगर में भी ऐसा आ गया है कि आपको जीरो शुगर वाले आइसक्रीम भी आ रहे हैं, कहने का मतलब चॉकलेट्स भी आ रहे हैं, सारी चीज़ें. तो
बहुत नई इंडस्ट्री है अपने, ऐसा नहीं है कि भाई पहले से है, क्योंकि यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न कंट्रीज में थी कि बराबर वो पहले से चल रहे, पैनकेक्स भी प्रोटीन वाले आ रहे, अभी अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। तो वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होने में कितना टाइम लगेगा अपने वहाँ पे कि भाई लोग एडप्ट करोगे इजीली कि भाई हाँ बराबर है। क्योंकि अभी तो रोटी में भी आ रहा है कि रोटी में भी आप इतना मिक्स कर दो, आपका प्रोटीन आराम से इतना हो जाएगा रोटी में। अच्छा, ओके। विथ रिस्पेक्ट टू दैट, आई थिंक कि अपने जब भी वी विल हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू कि ये आइटम्स यूज होनी चाहिए, दिस इज अंडर द सेफ कैटेगरी, दिस इज नॉट सेफ कैटेगरी व्हेन इट कम्स टू एड। बिकॉज अगर आप जीरो शुगर आइसक्रीम बना रहे हो तो आप कोई तो स्वीटनर यूज कर रहे हो ना, वही बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगा ना। हाँ, स्वीटनर तो आप यूज कर रहे हो कोई तो। सो अंटिल एंड अनलेस दैट देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम आवर FSSAI, इट्स वेरी टफ थिंग, बिकॉज आप देखो फेंटा भी अपने यहाँ पे जो मिल रहा है वो कंप्लीट ऑरेंज का होता है, आप यूरोप में शायद से तो वहाँ पे आप देखो तो पूरा एक अलग ही मतलब येलोइश टोन पे आता है। सो वी नीड टू हैव स्ट्रिक्टर रूल्स एंड रेगुलेशंस विद रिस्पेक्ट टू इट। वो जब होगा तब भी देन आई विल कंसिडर दैट हाँ ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है एंड ये परमिसिबल लिमिट्स में है, एंड फिर लोग इफ यू आर एंजॉइंग इट वंस इन अ वाइल इट्स ओके। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट शुड बी देयर फॉर अस इज कि यूरोप में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं दे आर वेरी वेल एडुकेटेड कि उनका A से लेके EF तक कैटेगरी होता है विथ रिस्पेक्ट टू देयर फूड की लेबल्स पे। हाँ कि अगर स्टार्स होते हैं कि 4 स्टार्स 5 आपको पता कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी है। हाँ, तो अगर A है B है तो इट इज कंपैरेटिवली हेल्दी। C D है तो इट इज लाइक ठीक है, ओके, हाँ कभी वंस अ वाइल। EF है तो देन यू आर जानबूझ के आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे हेल्दी तो नहीं खाना है करके। So that kind of system also should be there. Layman के लिए it is easier to select products then. सिंगापुर में भी है, a lot of countries have it. Yeah, अपने यहाँ पे भी होना चाहिए, and that's a very interesting thing. It's an interesting concept जिसको बहुत डीप में नहीं जाना है। हाँ, वो सिर्फ वो लेबल देखेगा, A से F तक का साइन देखेगा कि कौन से कैटेगरी में ये फॉल करता है, एंड दे कैन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स ना कि मुझे ये हफ्ते में एक बार खाना है, मुझे ये हर रोज खाना है। अपने अराउंड द ग्लोब बात करें तो जापानीज जो लोग होते हैं, मेरे जो फ्रेंड्स भी थे ऑस्ट्रेलिया में यार, वो लोग बहुत स्किनी रहते हैं। चाइनीज में मैंने देखा है कि कुछ थोड़े हेल्दियर साइड में आते हैं, पर जापानीज में हार्डली कोई दिखता है। राइस ओरिएंटेड भी उनकी डाइट भी सेम अपने जैसी है ना, एशियन डाइट। तो क्या मतलब स्टेप्स हो रहे हैं या फिर और क्या जेनेटिक्स प्ले कर रहा है यहाँ पे या क्या? They have a very strong sense of community. They have a very strong sense of community. That is one. Yeah, I'm not sure, but there was this one I think documentary on Netflix that I saw. People who go on to living about 100 years, and there was this one place from Japan only. So वहाँ पे जो strong points थे is that लोग अपना खुद का खाना उगाते हैं। Okay. हाँ, they are up until they are 100, 106. मतलब उनके लिए someone who is 30-35 very young for them. मतलब आप बच्चे हो अभी तक उनके लिए। For someone who is in 60-70, आप मिडिल एज वाले ग्रुप में हो। अपने यहाँ पे 60-70 लाइक आप ओल्ड एज पे आ गए। For someone who's 100, 90, 100 and above, वो वाले ओल्ड कंसिडर किए जाते हैं वहाँ पे। So a few common traits that I saw there was they मतलब अगर जो लोग काफी वो आइलैंड जो था स्पेसिफिकली, they live in a community. मतलब everything, whether it's a 106-year-old grandma or whether someone who is in the age group of 30-35, they live in a community. खुद का खाना उगाते हैं वो लोग। They practice a lot of gratitude. Of gratitude, and a lot of things shift when you practice gratitude. उनका basic diet भी जो था, their major source of carbohydrates was that one kind of sweet potato जो मैंने देखा था। Complex carbs. They also heavily rely on certain seaweed, which is very good source of omega-3. तो ये सारी जो and बहुत clean and pollution free environment में रहते हैं। तो 10 years तो वहाँ पे प्लस हो गया। हाँ, and stress free life होता है। स्ट्रेस फ्री तो मैं नहीं मानता यार, क्योंकि यार ओवरवर्क तो देखो वहाँ पे कितना वो है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक दिस आइलैंड दैट आई हैड सीन द डॉक्यूमेंट्री ऑन। हाँ, ओकिनावा या ओकिनावा इज द करेक्ट नेम। तो वो है, तो आई थिंक दैट ऑल्सो, बट इन जनरल ऑल्सो आई डू अग्री कि जापान में जो वर्क कल्चर है दैट दे
ओवरवर्किंग जो होता है, हाँ, डेथ भी बहुत होती है, हाँ, डेथ सुसाइड बहुत होती है उसके वजह से। हाँ, बट अदर देन दैट जो ये पर्टिकुलर आइलैंड के बारे में जितना मैंने स्टडी किया था, दीज वर द कॉमन ट्रेट्स दैट आई ऑब्जर्व्ड इन दोज पीपल। जापान एज इन जनरल आई थिंक उनका स्ट्रक्चर एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है, एंड इंडिया को छोड़ के हर जगह का आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं बाहर जाए विथ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि 10,000 स्टेप्स इजीली हो जाते हैं इजीली। यू वर इन ऑस्ट्रेलिया, यस, आराम से होते थे, पता चलता था? नहीं चलता। मुझे यहाँ पे अगर स्टेप काउंट करना है ना 10,000, मुझे 1.5 घंटा अलग से डालना पड़ता है थ्रू आउट फ्रॉम माई डे, कि सो दैट आई कैन मीट अप माई स्टेप काउंट फॉर दैट होल डे। या फिर मुझे अलग से इन्वेस्ट करना पड़ता है इन अ मशीन, जहाँ पे अगर मेरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि मैं काम करते जाऊँ और उसके ऊपर दिन भर में चलते जाऊँ, बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर हियर डज नॉट अलाउ मी टू डू दैट, कि मैं कहीं पर भी जल्दी से चल के पहुंच जाऊँ या फिर मेक सेंस। या मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था ना, तो एक कल्चर वहाँ पे आप देखोगे ना, तो मोस्टली सब लोग ना लंच ब्रेक में भी रनिंग करने के लिए जा रहे हैं, वर्कआउट के लिए जा रहे हैं, 15-20 मिनट्स के लिए रन के लिए चले गए। तो वो सारी चीज जब यहाँ पे अप्रिशिएट होगी ना, रादर देन जस्ट के भाई करो 8 घंटे 10 घंटे 80 घंटे करो। पर जाएंगे कहाँ लोग? आई वेंट टू यूरोप, लोग शर्ट फ्री ऐसा निकाल कहाँ यहाँ पे, बात भी है, यहाँ पे एसजी हाईवे पे लोग कहाँ घूमने जाएंगे? ऐसे गार्डन्स भी नहीं है ना, बेसिकली पार्क्स नहीं है, पार्क्स नहीं है। गवर्नमेंट को थोड़ा उस पर ध्यान रखना चाहिए कि एवरी सर्टेन किलोमीटर्स के एक पार्क हो, वहाँ पे बच्चे भी जाए, कहने का मतलब, और सब लोग जा पाए। दैट विल ऑल्सो प्रिवेंट इंडिया from going towards diabetes in the younger age group, because we recently had this case of a child who was 13 years old. Nice, very cute, chubby little boy, loves eating food. Food is not the problem here. The problem was that from 7 o'clock in the morning to 3 o'clock in the afternoon, he's sitting in school. ठीक है, देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी बिकॉज बैठे हैं वहां पे पूरे दिन में। 4:15 ही कम्स बैक होम, ही ईट्स नॉर्मल, फिर उसके बाद ट्यूशन रहते हैं 8-9 बजे तक। ठीक है, फिर मैं बोलती हूँ कि इसको थोड़ा खेलने भेजो, पर द पेरेंट्स आर लाइक टाइम कहाँ है मैडम खेलने के लिए भेजे। ट्राइड फॉर अ फ्यू मंथ्स विद डाइट, कितना भी डाइट कंट्रोल करने जाए, बट अ 13-year-old is a growing child. I can't restrict his food portions. After beyond a point, I can't restrict his portions, and that was a real challenge. क्योंकि growing child है, I don't want to restrict portions, but सामने मेरा physical activity meetup नहीं हो रहा है. So bringing down his HbA1c, he was a pre-diabetic. हाँ, so bringing at 13 years of age. फिर deeper testing किया that he could be जस्ट सो दैट पेरेंट्स का डाउट क्लियर हो जाए कि टाइप 1 तो नहीं है करके। बट आई न्यू कि ये टाइप 1 नहीं होता है। टाइप 1 डिटेक्ट ही जब होता है ना, तो 400-500 पे शुगर होता है। हाँ, प्री डायबिटिक में कभी टाइप 1 नहीं डिटेक्ट होता है। इट्स ऑलवेज इन द हायर रेंज जब टाइप 1 डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो, एंड द सिम्टम्स आर डिफरेंट। सो आई न्यू फॉर श्योर कि हिज लाइफस्टाइल इज सेडेंटरी एंड दैट इज व्हाई ही इज इन द प्री डायबिटिक कैटेगरी। डीपर टेस्टिंग करवाया, डॉक्टर के पास भेजा। सो द डॉक्टर इज ऑल्सो लाइक प्लीज लेट हिम प्ले, प्लीज लेट हिम प्ले, let him play for 2 hours, 3 hours in a day. That's how he's going to reduce his weight. That's how he's going to reduce his HbA1c levels. Otherwise ये नहीं होने वाला है। कोई भी एक्टिविटी में रखो basically. कोई भी एक्टिविटी। We as 90s kids as growing up, we've been very active physically. खेलना कूदना was a part because technology इतना नहीं था। Nowadays kids they are like in their laptops या फिर in their iPads, phones, मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। कुछ ना कुछ चल रहा है। तो and that was for my entire team also, that was an ऐसा eye opening thing कि नहीं, we were confident, but parents को समझाना कभी कभी difficult हो जाता है, especially when it's a kiddo. कि ये एज पे इतना HbA1c कैसे आ गया, इतना हम डाइट तो कर रहे हैं फिर भी क्यों कम नहीं हो रहा है। बट जो मेन पिलर है उसका बच्चे का, जो फिजिकल एक्टिविटी है, वहाँ पे फोकस करना चाहिए।
तो ये तो ओवरऑल पूरी सोसाइटी का इश्यू है कहने का मतलब, ये मैं सारी जगह देख रहा हूँ, किसी के भी रिलेटिव में भी किसी के बच्चे सेम लाइफस्टाइल ही फॉलो करे, सुबह से जा रहे हैं, दोपहर को आके खा पी के वापस ट्यूशन, शाम को फिर थक जाते हैं तो फिर खा पी के सो जाते हैं, खत्म लाइफ। नहीं होना चाहिए यार बच्चों में इतना, तो नहीं होना चाहिए, बट हो रहा है एंड कहीं ना कहीं दिस विल चेंज, बिकॉज अभी जब ये ज्यादा होने लगेगा ना, व्हेन पीपल स्टार्ट रियलाइजिंग इट ऑल्सो, फिर वो पूरा वेव ऑफ चेंज भी आता है। सो आई एम होपिंग दैट जेन्युइनली दिस चेंज कम्स थ्रू, एंड दिस चेंज कम्स थ्रू विद द न्यू जनरेशन ऑफ पेरेंट्स। They understand the and काफी सारे parents मैंने देखा भी है, they put in a lot of efforts to curtail the habit of social media, curtail the habit of using phone या technology या screen time एकदम restricted रहता है। But then for that to happen, the parent has to be equally involved in the child's life. वो भी है। ऑस्ट्रेलिया में रिसेंटली एक रूल था, मेरे को पता नहीं कितनी एज तक, बट वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया सोशल मीडिया, हाँ, यस। तो वो सारी चीजें अपने यहाँ पे भी आए तो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। टाइम है बट आएगा। हाँ, क्योंकि चेंज तो इंडिया में है ना, सिर्फ ये चीज पे नहीं, सारी चीज पे जरूरत है, इसीलिए ये चीज हमने चालू किया कि भाई लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड हो। मतलब पॉल्यूशन भी आप देखो, आप बोल रहे हो कि भाई चलने भी जाए, दौड़ने कहाँ पे यार पॉल्यूशन देखो, उससे अच्छा तो क्या इंडोर आप कुछ वर्कआउट कर लो, वो ज्यादा अच्छा है, आउटडोर तो जा ही नहीं सकते। Our clients from Delhi are struggling with the same. वहाँ पे तो अभी विंटर्स में तो और खराब है। They cannot step out. जिम इज द सेफेस्ट ऐसा ऑप्शन, या फिर घर पे एयर प्यूरिफायर लगा के फिर तुम वर्कआउट करो, बिकॉज people are feeling that effect. People are feeling that effect of air pollution. They are not able to walk or run outside. लॉन्ग टर्म की बात करो या शॉर्ट टर्म में भी दिखता है, जैसे कोई अच्छे कोई भी सिटीज है इंडिया में, सारी सिटीज ऐसे नहीं, किसी के अच्छे भी रहते हैं। तो जैसे नॉर्थ साइड से कोई ट्रैवल कर रहा है दिल्ली, जैसे उत्तराखंड से वहां से, तो लिटरली उनको इफेक्ट दिखता है, या फिर थोड़ा 6 महीने 8 महीने इफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ब्रीदिंग एंड एवरीथिंग इमीडिएट रहेगा ना। ऑक्सीजन इज एन it's a thing that you're consuming oxygen by the second. You stop breathing for 2 minutes, doesn't work that way, right? So whether someone is going from here, from Mumbai or from the south of India to Delhi, whether someone is coming from Uttarakhand to Delhi, unka problem will start immediately from the time that they land up in Delhi. Okay. If it's a short trip, 2-4 दिन का इतना फर्क शायद ना पता चले, बिकॉज पीपल आर वर्कड अप इन दैट कि जो काम कर रहे हैं वो खत्म करो और जाओ यहाँ से। बट फॉर समवन हु इज लिविंग इन दिल्ली, द इफेक्ट फॉर देम इज रियल। उनको वो डे ऑन डे, बिकॉज दे आर डूइंग देयर डेली एक्टिविटीज देयर इन दैट एनवायरमेंट। सो रिसेंटली कुछ स्टेट्स है ना, 15 and 20 सिगरेट्स अ डे, उतना पॉल्यूशन वहाँ पे, यू आर डेफिनेटली ब्रीदिंग। यस। और ये चीज़ अभी सोशल मीडिया में सारी जगह पे बहुत वायरल भी हो रही है, जैसे कि अभी बढ़ रहा है कहने का मतलब। अहमदाबाद में भी रिसेंटली अभी 200 प्लस क्रॉस कर गया, 277 आई थिंक लास्ट आई सॉ। मेरे घर पे एयर प्योरीफायर और वो सारी मतलब मैंडेटरी हो गया, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑफिस में वहाँ पे रखना ही पड़ रहा है। बट होपफुली यार कुछ चेंज आए कहने का मतलब, देश के अंदर तो ज्यादा अच्छा है। ट्रू। क्योंकि ओवरऑल मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने को जितने भी है, जैसे पहले होता था कि भाई ट्री प्लांटेशन वो सारे करवाते थे कि भाई जितना आप पूरे 50, 60, 70, 80 जितने भी ईयर्स आप यहाँ पे रह रहे हो, तो उतना आपका कार्बन इमिशन भी होगा, तो एटलीस्ट वो आप कैलकुलेट करके उतना तो आप उतना ट्री प्लांटेशन कर दो सामने। या दैट वे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले वो हिसाब से था। पीपल डिड नॉट हैव हाई राइज, ऐसा बिल्डिंग्स इतने नहीं होते थे, देयर वर होम्स विद कोर्टयार्ड्स, यू कुड हैव प्लांटेशन देयर। और मैंगो का वो जो रहते थे वो अपने प्लांट करने, छोटे थे तब जाते थे, वो सारी चीजें अभी भी याद है मेरे को। बट अभी नहीं हो रहा क्योंकि कंक्रीट जंगल ही बन रहा है। ट्रू। और मुंबई साइड तो और भी ज्यादा खराब होगा ना। आपके वहाँ पे कितनी है एयर क्वालिटी? क्लोज टू 200 वही है। सिमिलर है। ओवरऑल आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट वी नीडेड टू कवर वी डिड कवर। और ओवरऑल मेरे को पॉडकास्ट भी सही लगा आपके साथ। फर्स्ट था थोड़ा नर्वसनेस था, रीजन बीइंग के 5th, 6th, 7th मोस्टली पॉडकास्ट बहुत ज्यादा किए नहीं, बट ओवरऑल इट वाज अ फन एक्सपीरियंस फॉर मी। सेम हियर, दिस इज माय फर्स्ट पॉडकास्ट एक्चुअली। इज इट? इट इज। क्या बात है।
नाइस यार, होपफुली एक्सपीरियंस अच्छा था आपका फर्स्ट पॉडकास्ट Very का, nice, many more very to come. nice, very nice. I hope I was able to provide insightful content and Definitely you Yeah. did. और mostly whenever you are in Ahmedabad, do let me know. Surely. Mostly studio मेरा यहाँ पे ही बन रहा है. So एक अच्छा बार है. हाँ, so full in उसमें भी focus है. So next year से वो भी operational हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे और अच्छे से थोड़ा और improved सारी चीज़ों में मिलूंगा मैं. lovely. Thank you very much for Thank doing you, this. thank you.